Hello guys, today's topic for discussion would be a Python list. So in last class we have discussed about variable and the different data types. Apart from this, the indexing part. Today we'll discuss about a list. What exactly a list is, how we create that, and what number of operation we can perform on a list. So list basically a combination of multiple data type, a structure where we can store multiple data types all together. Let me show you an example how we can create a list. So let's start with Jupyter. And create a new file. And the topic for discussion would be a list. So list is a collection of, you can call it like it's an array, but it's not always an array because it can hold multiple data type altogether. As I said, लिस्ट जो स्ट्रक्चर है आपकी उसमें आप मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हो. लाइक वी कैन पुट स्ट्रिंग एज वेल, वी कैन स्टोर इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन. सो हाउ विल क्रिएट अ लिस्ट? आप लिस्ट जब भी बनाएंगे वी ऑलवेज यूज दीज ब्रैकेट्स. एंड लिस्ट नाम से लिस्ट नहीं बनाएंगे. I'll let you know why we'll not be using list as a name of list. So let me create a list. I am creating a list using L1. That's the name of list using this square bracket. And let me add some string value to this, integer as well, and a float value. And there is a conditional statement. So when you run it, shift enter is the short key to run that, and you call it. Here is the list. So if you check the type of this, you will see that it's a list. Now we see like how we use it. For example, अगर आप वेरिएबल बनाते हैं, अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं फॉर स्ट्रिंग रिकॉर्ड, तो आप उसे डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे. अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, सो यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएबल फॉर दैट न्यूमेरिक वैल्यू. सेम इसी तरीके से अगर आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट ले रहे हैं, कोई बूलियन वैल्यू है, सो आपको वो अलग वेरिएबल में स्टोर करनी होगी. अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए वेर यू वांट टू पुट ऑल द डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑल टुगेदर, आपको स्ट्रिंग भी स्टोर करना है, आपको नंबर्स मींस इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करनी है, फ्लोट भी स्टोर करना है, एंड आपको बूलियन भी स्टोर करना है. तो उस केस में हम जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो आपकी लिस्ट होगी. और लिस्ट आप ऐसे यूज के समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं, you want to buy a number of items. So let's say आप item 1 लेते हैं, आपने item 1 लिया, let's say fruits, right? Then you take item 2 or a product 2, then that's a vegetable. And item 3, that is, let's say rice or pulses, whatever it is. So आप इनको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो आपको इट वुड बी क्वाइट टफ टू मैनेज. यहाँ तो आपके पास 10 या 20 या 50 वेरिएबल है, सो दैट यू कैन क्रिएट मैन्युअली. इन केस यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड एंड यू वांट टू स्टोर इट समवेयर, देन वी नीड अ list for that purpose. So rather than creating a separate variable for every record, we can create a list for that part. So आप एक list बना सकते हैं for all items. Let's say all items is the name of your list. Here you can store all the items all together, like fruits, rice, and you can say pulses and vegetable, and so on. So this is the list where you have stored everything at one place. Now we want to
चेक इन केस आपने जो लिस्ट बनाई है, आपकी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसमें अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, कोई रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं, आप कैसे करेंगे? सो जस्ट टू चेक दैट, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रक्चर है विच इज लिस्ट, सो to check the all function related to this list, what you will do, you write the name of your list, dot, and you press tab. When you press tab, so you see all the options available for this. Means these are the compatible functions which you can apply on this existing list. So to understand the functionality of any function, it is really important to understand the name of your function, because जैसा नाम है function का वैसा ही उसका काम होगा. So we start all the functions one by one. Let's say आपने first function लिया append. आप जब भी कोई फंक्शन यूज करेंगे, यू ऑलवेज यूज स्मॉल पैरेंथेसिस. सो अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, मीन्स यू आर एडिंग समथिंग टू द करंट लिस्ट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर लिस्ट? दैट इज ऑल अंडरस्कोर आइटम्स. एंड आप इसमें कोई और नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है. लेट्स से हियर यू वांट टू ऐड in certain value, like you want to add 5 kg, and again you run your list and check ये आइटम जो आपने अभी अपेंड किया है, क्या ये आपकी लिस्ट में ऐड हुआ है या नहीं. एंड यू सी हियर इट्स ऑलरेडी एडेड. नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे, all underscore items dot tab. what is the next option? That is clear. Clear आपका क्या करेगा? ये पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा. So you will be having a empty list with the name of all underscore items. So I'm not gonna use this function here. Let me explore the next function, and the next function is copy. So copy function आपका क्या करेगा? आपकी जो existing list है, आप उस लिस्ट को कॉपी करके किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर करना चाहते हैं, तो आप जिस लोकेशन पे इस लिस्ट को स्टोर करके रखना चाहते हैं वो पहले से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं है यू हैव सर्टेन थिंग्स एंड यू डोंट हैव any location to store that. So how you can store that, or how you can copy and store that? So here I'm using a different name, new underscore list. तो न्यू अंडरस्कोर लिस्ट में आप ऑल अंडरस्कोर आइटम्स को कॉपी करके स्टोर करना चाहते हैं. दिस वुड बी अ सिंटैक्स. सो व्हेन यू रन इट, शिफ्ट एंटर टू रन दिस. नाउ यू चेक कि जो आपकी नई लिस्ट आपने बनाई है, इज दैट अ कॉपी ऑफ ऑल अंडरस्कोर आइटम्स और नॉट? सो इट्स अ कॉपी ऑफ ऑल अंडरस्कोर आइटम्स. सो कॉपी फंक्शन आपका क्या काम करेगा? जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी, आप उसको एज इट इज कॉपी करके किसी दूसरी लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, हमारे पास क्या फंक्शन है? आइटम्स डॉट टैब. नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास काउंट. तो काउंट का क्या काम है? इट विल काउंट समथिंग. व्हाट इट विल काउंट? ये क्या काउंट करेगा? ये काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ occurrences फॉर अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन अ लिस्ट. आपकी लिस्ट में कोई रिकॉर्ड कितनी बार आया है. अगर नहीं आया है तो ये आपको 0 दे देगा. अगर वो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स दैट रिकॉर्ड इज अवेलेबल, वो आपको दे देगा. लेट्स से हियर यू वांट टू चेक फ्रूट्स. So in this list you can see fruits हमारा सिर्फ एक बार आपकी लिस्ट में अवेलेबल है. You will see answer the output of this syntax as 1. Now let's say आप कोई ऐसा आइटम काउंट चेक करना चाहते हैं जो आपकी लिस्ट में है ही नहीं. Dot count and let's say orange. That is not there in your list, so it will give you 0 as output. तो यू अंडरस्टैंड, अगर आपकी लिस्ट में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो आउटपुट देगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड आपकी लिस्ट में कितनी
बाहर आया है। लेट्स से 5 टाइम्स आपके रिकॉर्ड में ऑरेंज आता है तो वो आपको 5 देगा। अगर ऑरेंज आपकी लिस्ट में है ही नहीं तो वो आपको 0 देगा। आप यहाँ वैलिडेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक छोटी सी लिस्ट है। इफ यू हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट और n नंबर ऑफ डेटा स्टोर इन अ पर्टिकुलर लिस्ट, तो उस केस में आप इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप काउंट फंक्शन यूज करेंगे टू चेक कि ये रिकॉर्ड मेरी लिस्ट में कितनी बार आया है। नाउ लेट्स मूव अगेन टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ योर लिस्ट डॉट टैब, एंड दैट इज एक्सटेंड। एक्सटेंड का क्या काम है? ये आपकी लिस्ट को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? फॉर एग्जाम्पल यू पास a textual data and you write it something like this, and when you run and check the list, तो you see कि जो आपकी ABC नाम की स्ट्रिंग थी उसको, उसके हर वर्ड को एक नया रिकॉर्ड बना के उसने आपकी लिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर यही काम आप अपेंड से करते सो आपको 3 बार सिंटेक्स लिखना पड़ता, अपेंड फॉर A, अपेंड फॉर B एंड अपेंड फॉर C. In extend you can pass a string, and in case you want to circulate that string based on every word, तो आप उसे extend के थ्रू इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। extend हम दो तरीके से यूज करते हैं। The another option is items dot extend small parenthesis. अब let's say आप अपनी existing list में more than 2 records ऐड करना चाहते हैं। so अगर आप direct more than 2 records लिखेंगे, let's say apple and let's say pears, so once you run it, it will throw error. What is the error? Like extend takes exactly 1 argument to given, means you cannot pass more than 2 argument in extend function. So just to run this, how you will be using this syntax, you will pass these 2 record within a list. अगर आप इन 2 रिकॉर्ड्स को एक लिस्ट में पास करेंगे तो वो उसे ऐड कर देगा। एंड यू रन एंड चेक द लिस्ट, शिफ्ट एंटर, एंड हियर यू सी आपके एप्पल एंड पियर्स हैज बीन एडेड। अगर आप एक्सटेंड में मोर देन 1 रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं सो आप उसे एक लिस्ट में पास करेंगे। इट कैन बी एनी डेटा टाइप, आप स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, आप न्यूमेरिक, फ्लोट, you can put any data type into that list and it will be extended. Next option आपका आता है all underscore items dot tab. What is the next option? That is index. इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी आप एक लिस्ट बनाते हैं या जो भी आप यहाँ लिखते हैं फ्रंट एंड पे, सो बैक एंड में वो कोई ना कोई मेमोरी यूटिलाइज करता है। सो पाइथन में जो मेमोरी काउंटिंग जो स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। सो आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरी लिस्ट है, आप अगर अपनी पूरी लिस्ट चेक करेंगे तो उस लिस्ट में, लेट मी शो यू लिस्ट फर्स्ट, आपके पास जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये किसी ना किसी इंडेक्स पे स्टोर है। अगर आप किसी भी रिकॉर्ड का इंडेक्स पता करना चाहते हैं तो आप डॉट इंडेक्स और अपना रिकॉर्ड पास करेंगे। लेट्स से आई वांट टू सी कि राइस आपका किस इंडेक्स पे है, सो यू विल गेट 1 एज एन आउटपुट, क्योंकि फ्रूट्स इज एट 0 इंडेक्स एंड राइस इज एट 1 इंडेक्स। पल्सेस आपका 2 इंडेक्स पे है एंड you'll keep counting for all the records. So let me check B in place of rice. So you'll see B is at 6 index. You count it from here. It's 0, 1, 2, vegetable for 3, 5 kg for 4, A at 5 index and B at 6 index. So you can get the index value for any record here, because आपके पास एक छोटी सी लिस्ट है, so it's very easy to keep counting all the records. But अगर आपके पास एक lengthy list होती है, बहुत सारे item you have stored to that particular list, so it's very tough for you to keep counting to get the index value of a record. Clear?
तो इंडेक्स आप इस तरीके से पता करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है डॉट टैब इंसर्ट। लेट्स से आप अपेंड किया, आपने कोई रिकॉर्ड ऐड किया इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो यू हैव नोटिस्ड कि वो आपकी लिस्ट में एज अ लास्ट एलिमेंट ऐड होता है। यू सी इट हियर। आपने जब अपेंड किया था 5 kg, so it was added as a last element of your list. You see here, right? You don't want to add this at as a last record. You want to add it somewhere between this list. Means you want to add to a specific position or a index. So rather than using append, you will be using insert in that case. Insert में आप पहले पास करेंगे position and then record. किस position पे क्या record आप add करना चाहते हैं? Let's say here you want to add watermelon. एंड टू इंडेक्स पे ये आपके वाटरमेलन को ऐड कर देगा. टू चेक दैट यू हैव टू कॉल द लिस्ट आइटम्स. So you see 0, 1, 2 at 2 index watermelon has been added. So insert और append आपके डिफरेंस append and insert में ये होता है. Append as a last element record ऐड करेगा. Insert से आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे भी ऐड करा सकते हैं. Again, let's explore the next function dot tab. Next function is pop. So what pop does? अगर आप empty pop function pass कराएंगे without passing any argument to this, so what it will does, it will pop the last record. ये आपकी list से last record हटा देगा. आप list check करेंगे तो Pierce is not there in your list. Here you see Pierce is not there. So pop अगर आप without argument पास करते हैं, so ये default option है कि आपका last record list से pop out कर देगा, हटा देगा उसको. लेकिन अगर आप last record add नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई specific index आपका pop हो जाए, तो उस केस में आप pop में index पास करेंगे. So let's say here I want to pass 3. तो 3 इंडेक्स पे क्या है आपका 0, 1, 2, 3 पल्सेस. सो ये आपका पल्सेस को हटा देगा. यू चेक पल्सेस नॉट देयर. क्लियर. नेक्स्ट आपका आता है ऑल अंडरस्कोर आइटम्स डॉट टैब. रिमूव. रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है? पॉप आपका पोजीशन से कोई रिकॉर्ड हटाएगा, आपको उस रिकॉर्ड का इंडेक्स और यू कैन से द पोजीशन पता होना चाहिए. अगर आपको उसका इंडेक्स नहीं पता है तो आप उसे रिमूव के थ्रू हटा सकते हैं. रिमूव में आप डायरेक्टली रिकॉर्ड पास कर देंगे. लेट्स से यू वांट टू रिमूव राइस एंड यू रन इट. अगेन यू चेक योर लिस्ट जिसमें आपका राइस नहीं है. तो पॉप और रिमूव में आपका डिफरेंस ये है, पॉप में आप किसी भी इंडेक्स से रिकॉर्ड हटाएंगे, रिमूव में आप डायरेक्ट वो रिकॉर्ड पास कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है डॉट टैब रिवर्स. रिवर्स सिंपली आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा. जो आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा वो आपका लास्ट हो जाएगा, जो आपका लास्ट इंडेक्स है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा. It's very simple to use. Next is dot tab. That is sort. क्या आप अपनी इस लिस्ट पे शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं? Yes, we can. क्योंकि आपकी लिस्ट स्पेसिफिक डेटा टाइप से बनी हुई है. सेम डेटा टाइप से आपकी लिस्ट बनी हुई है. तो इसने जो शॉर्टिंग किया है, क्योंकि ये नंबर है, so it has given number as first, then from alphabetically it has been shorted. अगर आपकी लिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स होगा, यहाँ आपने 5 kg को भी कोट्स में रखा है, यू पास इट लाइक अ स्ट्रिंग, सो दैट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू. अगर न्यूमेरिक रिकॉर्ड्स के साथ आप कोई लिस्ट बनाते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यूमेरिक लिस्ट with all the numeric values like this. So यहाँ अगर आप शॉर्ट करेंगे num underscore list dot short,
सो वो नंबर्स की फॉर्म में उसे शॉर्ट कर देगा. नो num underscore list has been shorted. You see it's an increasing order. But अगर आप combination of multiple data type list बनाते हैं तो उस केस में ये शॉर्टिंग आपका काम नहीं करेगा. It will not short your record. Let's say you have put a string value as well and numeric as well. It will throw error in this case. com underscore list dot short, because you cannot perform shorting between two instances like integer and string. So in case you have similar data type and that is a textual data, so वो alphabetical order में आपका short करेगा. अगर आपके पास numeric list है with all the numeric records तो वो numeric order में short करेगा. In increasing order, if you have a combination of different data types altogether, so shorting will not work because it does not support two instances altogether. So आपने जो यहाँ list पढ़ी, आपने list के compatible सारे functions discuss किए हैं. all underscore items dot tab. Let me explain all the functions once again. Here you have append function. Append क्या करेगा, आपकी लिस्ट में कोई रिकॉर्ड अगर आपको जोड़ना है so you will be using append function. आप कोई भी डेटा टाइप जोड़ सकते हैं. It can be a string, it can be an integer, float or boolean. Then you have another function which is clear. This will clear the whole list which you have created. Next, the copy function. In case you want to store the copy of your existing list to a different location, then you will be using a copy function. Count, आपकी लिस्ट में कोई रिकॉर्ड कितनी बार आया है, means the frequency of the records you can get with the count function. Extend आपका दो तरीके से काम करेगा. In case you are passing a string, तो वो हर वर्ड पे स्ट्रिंग को सर्कुलेट कर देगा एंड एज अ इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऐड कर देगा. अगर आप मोर देन 2 रिकॉर्ड्स एक साथ ऐड करना चाहते हैं, मोर देन 1 रिकॉर्ड, उस केस में आप एक्सटेंड में लिस्ट के पैरेंथेसिस के साथ वो ऐड करेंगे. अगर आप लिस्ट के पैरेंथेसिस नहीं देंगे, लिस्ट पैरेंथेसिस मींस स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट, अगर आप ये नहीं देंगे तो इट विल थ्रो एरर. नेक्स्ट आपका आता है इंडेक्स. इंडेक्स आपको लिस्ट में किसी भी रिकॉर्ड की पोजीशन बताएगा, इंडेक्स पोजीशन. इंसर्ट आप इसलिए यूज करते हैं इन केस आप कोई रिकॉर्ड स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप रादर देन यूजिंग अपेंड आप इंसर्ट यूज करेंगे, क्योंकि अपेंड एज अ लास्ट एलिमेंट ऐड करता है. पॉप आपका डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट करेगा, हटा देगा. अगर आप स्पेसिफिक पोजीशन हटाना चाहते हैं तो आप पॉप में वो इंडेक्स पास कर देंगे. रिमूव आपका रिकॉर्ड वाइज चलेगा, पॉप आपका पोजीशन वाइज चलेगा. रिमूव में आप स्पेसिफिकली वो रिकॉर्ड ऐड करेंगे. लेट्स से आप इस लिस्ट से हेलो हटाना चाहते हैं, तो अगर आप पॉप यूज कर रहे हैं तो आप हेलो का इंडेक्स जो कि 0 है वो पास करेंगे. अगर आप रिमूव यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट हेलो पास करेंगे. रिवर्स आपकी लिस्ट को पूरा रिवर्स कर देगा एंड शॉर्ट इज फॉर shorting your list. So it was all about the list. List is one of the most important structure which we use in most of the cases. So here you can go through with this document. In case you have any confusion with the list, we can discuss that part. Next topic would be tuple. Thank you guys. Meanwhile, take care and happy learning.